کیا خیال ہے خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ ہاں آ جائیں گے. کب تک؟ اگر خان فیصلہ کر لیتے ہیں احتجاج کمیٹی بنا دیتے ہیں. میں نے اپنی والدہ کے جو بہترین پلیزنٹ لمحات کیا ہوا کرتے تھے سن کے پورے ملک کو حیرت ہو. عمران خان، امید، نواز شریف، نا امید، جنرل عاصم منیر، نہ سمجھ، مریم نواز، پانی کا بلبلا. انڈیا. انڈیا کو اب میں دشمن نہیں سمجھتا ہوں. نہیں سمجھتے؟ اب میں دشمن نہیں سمجھتا. بل این یا پی 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 کی طرف سے جوائن کرنے کی آفر ملے کیا کریں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. 1 مہینہ لگے گا اس فیصلے کے. یوتھ کو سکھایا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ فوج کے اوپر تنقید ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اس ملک کی بھی اب ضرورت بن چکا ہے. تمام تر بیانیوں کے ساتھ الزامات کے باوجود خان کا امیج بڑھتا جا رہا. جو ایک زمانے میں بڑا لیڈر ہوا کرتا تھا، بازار میں جاتا ہے کوئی ایک آدمی سیلفی کے لیے نہیں ملتا ہے، گور گور کے دیکھتا ہے اس امید پہ کہ کوئی پہچان لے گا. ہاں میاں صاحب آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اینڈ گیونگ می دا ٹائم. ویلکم. بخیر راغلے. ستړی مشي. ستاسو څنګه یې؟ زه ښه یم، ډېره مننه، مهرباني، خوشحاله اوسئ. اوکے گریٹ. میرا پہلا سوال آپ سے، گینگسٹر موویز کہیں ہالی ووڈ کی زیادہ تو نہیں دیکھتے رہے؟ اس کی وجہ ہے سلیکڈ جیل پیک ہیئر، سگریٹ، دا پنک پرسنالٹی، یا اٹ جسٹ کمز نیچرلی؟ ہمیشہ سے یہی ہوں. جو لوگ مجھے 30 سال پہلے جانتے تھے ان کو آج بھی میں ویسا ہی لگتا ہوں. میں کوئی صنعت نہیں کرتا ہوں. یو آر واٹ یو آر. یا اینڈ ڈو یو لائک اٹ کہ لوگ آپ کو اتنا، آپ کی فین فالوئنگ اتنی زیادہ ہے، آپ جو بات کرتے ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہے؟ یہ تو مجھے علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے اتنی محبت پیدا کرے گا. لیکن اب جب پبلک میں جاتا ہوں، کہیں مارکیٹ میں گیا، کہیں پیٹرول پمپ پہ رکے، تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو والہانہ پن ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. بہت زیادہ محبت ہے لوگوں کی، اور یہ اللہ کی دین ہے. اس میں یا کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہے. اور یہ جو آپ وائرل کنٹینٹ دے دیتے ہیں، یہ جو آپ کی بڑی ہیپننگ قسم کی کنورسیشنز ہوتی ہیں، تو یہ بھی الہام ہے؟ نہیں، الہام تو نہیں ہے، بس جیسے کو تیسا جو بات آ جاتی ہے اسی طرح. وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں چنگا مخاگا سے چپیڑا، جیسا منہ ویسا تھپڑ. تو جو سوال ہوتا ہے ویسا ہی جواب. یعنی پھر میں دھیان سے انٹرویو کروں، یہ نہ پروگرام میرا بیپ ہو جائے. نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ اپنے میانے اور لاہور سے آئی ہیں تو آپ کی زیادتی بھی برداشت کر لیں گے. ارے پھر میں سٹارٹ ہوتی ہوں. ہمارا پہلا راؤنڈ اسپل اٹ آؤٹ. 1 پوائنٹ ایک سوال میں آپ کو دوں گی، 1 ورڈ میں کوشش کیجیے گا آپ مجھے جواب دیں. اکثر اس کے اندر گیسٹ غلطیاں کر جاتے ہیں، ایڈٹ میں نہیں کروں گی. پہلا ورڈ، پہلا نیم. عمران خان، امید، نواز شریف، نا امید. شہباز شریف، He is like vulture, that's all. اوکے. جنرل عاصم منیر، نہ سمجھ. مریم نواز، پانی کا بلبلا. بس. That's all. اینجلینا جولی، My favorite. اسما بخاری، بڑی کینچی. کینچی. ہاں کینچی دار زبان ہے کمال کی. وہ جناب جب بولتی ہے نا کڑت کڑت کڑت. آپ کو پسند ہے ان کا بات کرنا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زبان اس کی بڑی کینچی دار ہے، شخصیت اس کی پلیزنٹ ہے، لیکن زبان جو ہے نا اس کی وہ زہر اگلتی ہے، خصوصاً ہمارے خلاف. کوئی آپ سے خاص ان کو رنجش ہے؟ نہیں، میری کوئی رنجش نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے. بس ویسے ہی. نہیں، میری نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے میں
फिक्रे कसता रहता हूँ, तो उनकी अगर डिसलाइकिंग है तो जायज़ भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो जरदारी बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा है, तो मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है। प्यार? हाँ, जो अमूमन मिलता नहीं है किसी को। शादी? बच्चे अगर शादी में ना हो ना तो शादी ही ना हो। अभी लास्ट आपने एक बड़े मजे का कमेंट भी दिया था ना, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। आपका बेटा जब शरारतें कर रहा था, हाँ। वो क्या वर्ड था? वंडरफुल बगैरत। ये आपको टर्म आती कैसे है? मतलब वो जब आपने वो बोला ना वंडरफुल बगैरत, तो मेरे दिल में भी ये आया, मैंने कहा मेरे अब्बा भी मेरे लिए यही सोचते होंगे। शेख रशीद? शेख रशीद उसकी मिसाल है, वो ताजियाना उन पे लगा है, ताज़ा ताज़ा, और अब उम्र भी नहीं है उनकी। बुढ़े हो गए? यानी आप ऐसे इस्तफसार कर रही हैं जैसे आपको नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अब मेरा ख्याल तो ये है कि शेख साहब अब अगले जहान की तैयारियों में मसरूफ हैं और शायद अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहे हैं। ओके। पाकिस्तान? पाकिस्तान हमारी मोहब्बत है, हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी है। पैदा होने से लेकर आज तक दिल में, ज़बान पे, हर जगह पे हम पाकिस्तान की खैरखाई, पाकिस्तान की सरबुलंदी चाहते हैं। इंडिया? इंडिया को अब मैं दुश्मन नहीं समझता हूँ। नहीं समझते? अब मैं दुश्मन नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब हमारा मुकाबला, कंपटीशन मईशत में होनी चाहिए, वसाइल पैदा करने में होनी चाहिए, रोजगार में। दूर अदवार ऐसे बन रहे हैं कि ये जो आपकी हमसायों के साथ जो दुश्मनियां होती है, वो जिन ग्राउंड्स पे हुआ करती थी, अब वो ग्राउंड शायद एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ट्रू। तो आपको लगता है गुडविल के साथ मईशत के ऊपर फोकस किया जाए? गुडविल के साथ। अब 76 साल में हमने इस दुश्मनी से कुछ नहीं पाया। अब इसको छोड़ के हमें अपने टूटी फूटी सड़कों को बनाना चाहिए, अपनी सेहत, अपने रोजगार के जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। ये इंडिया की दुश्मनी में हमारी 3 जनरेशन जो हैं वो ज़ाय हो गई। Which is a very good note, because ज्यादातर politicians हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि you hold a very different view और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को लेके आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच है। सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया हिजाज मुकद्दस है, हिजाज मुकद्दस की सरजमीन है, तो एहतराम है दिल में। और जहाँ हमारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जहाँ उन पर नबूवत नाजिल की गई, तो लिहाजा सऊदी अरब की सरजमीन जो है ना, इसके लिए ताज़ीम रहेगी। और अल्लाह ताला जो हैं सऊदी सरजमीन को हुक्मरान भी ऐसे अजीम दें कि इस धरती, इस रियासत की नेकनामी को और जो ख्वाब वाबस्ता है उम्मत मुस्लिमा के, सऊदी अरब से उनकी ताबीर मिल सके। वैसे तो आप मुझे कोई खास जानते नहीं, फरीहा फरूख? अल्लाह खैर। जापानी गुड़िया। जापानी गुड़िया। शुक्र है वो वाला नहीं कह दिया। लाइक ए डॉल, स्वीट क्यूट डॉल। थैंक यू सो मच। हमारा अगला राउंड चिलैक्स। हमारा नेक्स्ट राउंड है चिलैक्स, चिल एंड रिलैक्स। अब हम आराम से बातें कर सकते हैं। रिसेंट आपका जो सफर था तरनौल से गोलड़ा का, कैसा था? वो सफर जो था वो तरनौल से गोलड़ा नहीं था, वो था गोलड़ा से मैकडोनल्ड F10 मरकज, अच्छा, वहां से F8 से होता हुआ F9 पार्क से गुजर के F11, फिर E11 और फिर E11 से उसी मकाम तक जहां से मुझे उठाया गया था।
अच्छा, ये तो काफी लंबा सफर था। हाँ, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ज़ाय किए। हुआ तो कुछ भी नहीं। बेसिकली खदशा ये था कि शायद ये इन आवर्स को मैं लोगों को जमा करने पे लगा दूं और कहीं मैं तरनोल में लोगों को ये न कह दूं कि आए जलसा करते हैं। और आपकी तो पब्लिक में पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था। अगर हम जलसा करना चाहते तो कर सकते थे। अभी कोई है इम्कान? अभी तो 8 सितंबर की तारीख पड़ी है, करेंगे? कल पता चलेगा, खान साहब से मिलूंगा। अगर जिम्मेदारी मुझे दी तो मैं सबसे आगे हूँगा, अगर जिम्मेदारी किसी और को दी तो मैं मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। खान साहब ठीक ठाक हैं? A1। सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते रहते हैं फारिग टाइम में अब आजकल? जेल में वो तिलावत ज्यादा करते हैं, अंग्रेजी का बतर्जमा कुरान शरीफ उनके पास है। पहले जब वो अटक में थे तो उनको पहुंचाया था। और इसके अलावा छोटी सी एक साइकिल है जिसपे वो अपने एक्सरसाइज करते हैं, वॉक भी करते हैं। और छोटा सा सेल है, बस उसी में फिर उनकी नजरें। तब ये ट्रायल जो हैं, एक फायदा तो है केसेस का जो इन पे बने हैं, और वो ये हैं कि केसेस जब बन जाते हैं तो फिर उनको चलाना भी होता है। तो चलाने के दिन फिर हम सब लोग मिल भी आते हैं। तो फिर ये इनका ये फायदा है कि उनकी मुलाकात हमारे साथ हफ्ते में 2-3 दफा हो जाती है। हौसले में है वो, तो हौसले और हिम्मत के पैकर है। और मुल्क के लिए कुछ कहते हैं हमेशा? हमेशा दिल उनका बड़ा दुखता है। ये जब होता है ना, इल्म होता है, आज ये कार्रवाई डाली है, कल वो कार्रवाई डाली है, सीटें हजम कर ली, ला नहीं मान रहे हैं, फैसला नहीं मान रहे हैं, तो दिल तो उनका दुखता है। और उनको एहसास भी है कि ये जो 2 सालों में, आपको हैरत होगी कि हमने सिर्फ मईशत में कम व बेश हमने कोई 24 बिलियन डॉलर जो हैं वो लूज किए हैं। ये वो पैसे थे जो हम रूटीन में कमा रहे थे। रेमिटेंसेस 31 बिलियन डॉलर थी खान के टाइम में, वो अब आ गई है कोई 22-23 बिलियन डॉलर को सालाना, यानी कोई 9 से 10 बिलियन डॉलर हम इसमें लूज कर रहे हैं। जबकि अभी तक हमने पूरा जो लोन लिया है IMF से वो 8 बिलियन डॉलर है। और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बैठ गई है, 6-6.5 बिलियन डॉलर जो है उसमें लॉस हो रहा है सालाना। महंगाई के बढ़ जाने से जो कर्जों का बोझ था वो उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, और इसी हिसाब से सूद भी बढ़ गया है। अदायगी का कि कर्जे किस तरह अदा करें, इसका कोई रोड मैप किसी ने दिया नहीं है। बोले हर एक से कर्जे लेके दूसरे को चुका दे और दूसरे से कर्जे लेके तीसरे को चुकाना, ये हमारी मईशत बनी हुई है। और रुपए जो हैं वो अंडर स्ट्रेस है। हमारे जो वसाइल हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। रिकोडिक में सोना निकला हुआ है बिल्कुल, और अभी तक रिकोडिक से एक्सट्रैक्शन नहीं हो रही है। क्या वजह? करप्शन, दैट्स ऑल। कोई पैगाम देते हैं वो अपनी यूथ के लिए? खान, देखिए खान तो अब अंदाता बना हुआ है ना यूथ का, और उसका वोटर ही यूथ है, उसका सपोर्टर ही यूथ है। और आप यकीन करें हमारी खान की और सब की अब उम्मीदें यूथ से वाबस्ता है। यूथ ही है जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में एक इनकलाब बर्पा किया, और यूथ ही है जो पाकिस्तान के इस सड़े बोसीदा निज़ाम को और हाल कर सकते हैं, इसमें तगय्युर इनकलाब ला सकते हैं। और खान की नजर यूथ की तरफ है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सिविल वॉर होगी, ब्लडशेड होगा, या निजाम में कोई तब्दीली आ जाएगी? मेरी जाती राय ये है कि निजाम जो है वो तो नहीं चाहता है कि निजाम को कोई आंच भी आए, उसका तो मफाद इसी के सर्वाइवल में है। लेकिन अवाम का मफाद जो है इस निजाम से छुड़ाने में है। चलो, ब्लडशेड की आपने बात की है ना, असल में तो हमारा मुआशरा एक किस्म के ब्लडशेड से बरसरे पेकार हैं जब से सन 47 में वजूद में आया है। और वो ब्लडशेड किस किस्म में है? कानून की हुक्मरानी नहीं है, सिफारिशें, अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है,
آپ کا پولیس کا نظام، تھانے کچہری کا نظام، وہ ایک استحصالی نظام بن چکا ہے. لوگوں پاکستانیوں کی امیدیں جو ہیں وہ ہر دور میں نئے حکمران سے ہوتی ہیں، اور حکمران کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتا کیونکہ نظام نے ہر ایک چیز کو جکڑا ہوا ہے. تو لہٰذا اب اگر اس نظام کو تبدیل کرنا ہے تو نظام ضرور چاہے گا کہ نہ چھیڑ ملنگانو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی یہ چھیڑ چھاڑ ہوگی اور تب دیکھیں گے کہ ریاست سے وفادار، پاکستان سے وفادار جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور نظام کے جو دائی ہیں وہ نظام کو بچانے کے لیے کس حد تک آگے جاتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ ضرور ہوگا. کیا ٹائم لائن ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک چنگاری درکار ہے، جیسے بنگلہ دیش میں ہوا. جیسے بنگلہ دیش میں ہوا. اگلا سوال، آپ کو ایک شو کاز نوٹس ملا، آپ نے ایسا کیا کیا تھا وائلٹ پارٹی کے مفاد کے خلاف تھا جو، یا یہ سازش تھی جو ہر جگہ پائی جاتی ہے؟ نہیں، مجھے تو کئی شوکاز ملے. آپ کس شوکاز کی بات کر رہی ہیں؟ پتہ نہیں، میں نے ریسرچ کی تھی لیٹسٹ والا شو کاز نوٹس. گزارش یہ ہیں وہ معاملات ختم ہو گئے. شوکاز اور شوکاز کی بات کی ساری کارروائیاں، خان سے میں ملا ہوں، ایک ملاقات کی مار تھی، باقی ساری باتیں ختم ہو گئی. ایسا کیا ہوا؟ جو کیا گیا تھا وہ سرے سے قانون کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا. جھوٹ تھا، سازش. تو یہ سازش تھی، شغلیاں تھی، اور اس کا حشر یہی ہونا تھا. خان سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ؟ خان ایک امید ہے نا، میری بھی اور میری طرح لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی. آپ سب پاکستانی سوچیں، جب تک خان ہے یہ امید ہے، اور یہ امید ہماری ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی آ سکتی ہے، جہاں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں آزاد عدلیہ ہوگی، اور جہاں عوام کے وسائل عوام پہ استعمال ہوں گے، جہاں حکومت جو ہے ایک پائیدار، ایک دوررس اور ایک بصیرت آمیز فارن پالیسی بنا سکے گی. یہ 76 سالوں میں یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہے. خان اب جن حالات میں سے دوچار ہیں، اب واحد امید خان کی ہے، تو لہٰذا ہماری پاکستانیوں کی محبت ہو، ہماری پاکستانیوں کی توجہ اور امیدوں کا محور ہیں خان کی ذات میں. اگر خدا نخواستہ خان کو مائنس کر دیں تو گٹھا ٹھوپن دے رہا ہے، کوئی امید نہیں ہے کسی سے. پھر یہی نظام کی ظلمت اور جبر جو ہیں وہ اپنے ٹینٹیکلز جو ہیں پھیلائے رکھے گی. پاکستانی جو ہیں محروم ہوں گے. یہ دیکھیے 3 قسم کے طبقات ہیں، اشرفیہ ہیں، ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، اور غریب. غریب جو ہیں وہ تو اب اتنا غریب ہو گیا ہے کہ اب وہ مانگنے پہ اتر آیا ہے. جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. لیکن جو مڈل کلاس ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مڈل کلاس کے حقوق پہ اٹیک ہوا ہے. یہ جو بل این یا پی 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 کی طرف سے جوائن کرنے کی آفر ملے، کیا کریں گے؟ نہیں آئے گی کبھی بھی. کیوں؟ ان سب کو پتہ ہے ہماری کمٹمنٹ سیاست میں صرف خان تک ہے، باقی کوئی امید کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ میں نے اس دور میں جب پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان تھا، خان کا ترجمان تھا، تو پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں ہم نے جوابی جو الزامات لگائے یا جو زبان استعمال کی، پیپل پارٹی کے عمائدین یا نون کے عمائدین یا جمعیت یا یہ جو دیگر ترین صاحب تھے یا فرید خٹک، ایسی زبان استعمال کی ہیں کہ اب اس زبان کے استعمال کے بعد ہمارے راستے مسدود ہو چکے ہیں. یہ تو ہے. ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آنکھیں سفید کر کے پھر جا کے جناب زرداری صاحب کے پیچھے وہ ہم نوا بن جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے اپنے مرالز، ہمارے اقدار جو ہیں وہ ہمیں پریونٹ کرتے ہیں. یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا؟ کہہ دیں ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا خیال ہے، خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ ہاں آ جائیں گے. کب تک؟ اگر خان فیصلہ کر لیتے ہیں، احتجاج کمیٹی بنا دیتے ہیں، 1 مہینہ لگے گا اس فیصلے کے، 1 مہینے کے اندر
कौम को निकालना होगा, जल्द से जुलूस, रैलियां और फिर धरने देने होंगे। इनका नाक में दम करना होगा तो खान बाहर आएगा। किन के नाक में दम करने? जिन्होंने खान को अंदर रखा हुआ है। हाय अल्लाह, सच्ची ना करे। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल, इल्जाम लगाया जाता है कि यूथ को सिखाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया और पीटीआई के सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा फौज के ऊपर तनकीद हुई। क्या आप अग्री करेंगे? नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि खान साहब ने खुद ही मुझे कहा था कि ऐसे इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए अपने जलसे कन्वेंशन में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाओ। Really? तो मैंने लगाए, और वो नारे लगाने की वजह से आज भी पीटीआई के कुछ ऐसे लोग जो इन नारों से समझते थे कि वो मजरूह हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग जो फौज के मुखालिफ थे या पाकिस्तान फौज के खिलाफ फर्जा सरैया करते थे, जो बाहर बैठे हैं, उन्होंने फिर मुझ पे ये मोहर लगाने की कोशिश की कि गोया मेरे फौज से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। जबकि मैंने खान के इमा पे, खान के कहने पे पाक फौज जिंदाबाद, और क्योंकि ये हमारी फौज है, शुहदा हमारे हैं, ये जवान बच्चे, कप्तान, मेजर, कर्नेल, ये शहीद होके आ जाते हैं, उनकी बीवियां, बच्चे, ये हमारे कौम के पास अमानत है। अब एक तो शहीद हो जाए, पीछे से हम पे ये इल्जाम भी लगाएंगे जी हमने उनके शुहदा के पुतले गिराए, जो कि झूठ था। तो लिहाजा इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए मैंने अपना एक किरदार अदा किया है, और जिस पे मुझे फख्र है। आपको लगता है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो फौज के लिए एक बेहतर प्रोपेगेंडा कर सकता है, एक अच्छा गुडविल इमेज बना सकता है? मैं समझता हूं कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है ना, वो इस मुल्क की भी अब जरूरत बन चुका है। फौज को, हुकूमत को, रियासत को जरूरत है कि अपना इमेज ना बेहतर करें बेशक, लेकिन फौज की इमेज को बेहतर करने के लिए उनके लिए जरूरी है कि जो हमारे मुआशरती अक़दार हैं, जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो कवानीन हैं, कवानीन की पासदारी हैं, उनको जो है एडेयर करते जाएं। अब देखो, सनम जावेद को या खदीजा शाह को बार बार गिरफ्तार करना, इससे कितनी नफरत पैदा होती है। क्यों ऐसे अक़दार जो हैं पामाल हो रहे हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया में वर्कर्स शामिल हैं, वॉलंटियर्स हैं। ये नहीं है कि कोई इस तरह की कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रलाइज्ड है, जिनके टेंटिकल्स हैं। नॉट एट ऑल, They're all volunteers. They all are volunteers, सिवाय उन चंद के जो कि खान का मीडिया चला रहे हैं। बाकी तो पीटीआई की जो बेसिकली सोशल मीडिया है, जिसको इन्होंने डिजिटल दहशतगर्द कहा है, वो तो वॉलंटियर्स हैं, और ये वॉलंटियर बड़े ही मजबूत लोग हैं। आजकल सोशल मीडिया को दुनिया की कोई ताकत जो है, रियासत भी शिकस्त नहीं दे सकती है, और ये 8 फरवरी को भी साबित हुआ, और ये आज तक साबित हो रहा है। तमाम तर बयानियों के साथ, इल्जामात के बावजूद खान का इमेज बढ़ता जा रहा है, और ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल्स तमाम कोशिशों के बावजूद और तमाम इल्जामात के बावजूद जो हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन आप ठीक ठाक ऑन करें, आप स्नैपचैट पे जाएं, आप दीगर प्लेटफॉर्म पे जाएं, आपको खान और पीटीआई नजर आएगी। तो कभी ये उम्मीद रखी जा सकती है कि जो आपका सोशल मीडिया है वो फौज के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेगा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा कि खान की जान छोड़ दें, पीटीआई की जान छोड़ दें, ये ज़ुल्म जबर बंद कर दें, ये यजीदियत के साथ अपने रास्ते अलहदा कर लें। और यही वजह है कि इन अवामिल ने उन चीजों को भी मट्टी बना दिया है जिनको सोना समझा जाता था। अब आप देखिए ना, मौलाना साहब भी अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ आ गए, क्योंकि उनको इल्म हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जुड़ जाता है वो सोने को मट्टी में तब्दील कर देता है। नवाज शरीफ की सियासत देखे ना, नवाज शरीफ की सियासत कहाँ पे आ गई? मैं बार बार कहता हूँ कि ओन चौधरी और नवाज शरीफ में क्या फर्क हुआ? दोनों फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। और आज जाए ना, नवाज शरीफ
जो एक जमाने में बड़ा लीडर हुआ करता था, बाजार में जाता है कोई एक आदमी सेल्फी के लिए नहीं मिलता है, घूर घूर के देखता है इस उम्मीद पे कि कोई पहचान लेगा, हाँ मियाँ साहब आ रहे हैं। और मियाँ साहब जो हैं वो अब समझे सियासी तौर पे उसने तबाही पेर दी है अपनी। क्या हासिल किया है? तो यानी एस्टैब्लिशमेंट की दोस्ती भी महंगी और दुश्मनी तो नहीं, लेकिन दुश्मनी में अगर आप देखें ना, कीमत तो अदा कर रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से फौज बेचारी जो है वो भी बदनाम हो रही है, तो वो छांटे तो उन पे भी पड़ रहे हैं। दूसरा आप देखें ना, दुनिया में न ये हुकूमत को लेजिटिमेसी दे सके। फॉर्म 47 जो है ये अब पूरी दुनिया को पता है कि एक चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठे हुए चोर हैं। इसके बाद ये हुकूमत जो है इस हुकूमत में और पंजाब में जो मोहतरमा आ गई है वज़ीर आला की शक्ल में, ये लोग किस मुंह से अवाम के पास जाके उनको कहते हैं हम आपके मसाइल हल करने के लिए आए हैं। यानी कि कौन इस तरह होगा कि चोरी करके फिर कहेगा कि उस चोरी की बुनियाद पे मैं अब जिनसे मैंने चोरी की है आवाम से, अब उनके हकूक या उनके मसाइल का अदा करूंगा। अक्ल मानती है ना, आवाम का इन पे एतमाद है, रेमिटेंसेज आना कम से कम तर होता जा रहा है, मईशत लोग अब अपने पैसे और अपना स्किल निकाल के मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो ये मुल्क दुश्मनी है, ना आपके पास कोई सोच है, ना फिक्र है, बस सारा दिन मुंह उठाए फिरते वो इधर से खैरात मिलेगी उधर से खैरात मिलेगी। आपने कौम को खैरात ही बना दिया है। पाकिस्तान की आपने जो शनाख्त है वो एक आपने मलंग और फकीर की बना दी है। हम अब इतने गए गुजरे तो नहीं थे। और वो रियासत ममालिक, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है कि बांग्लादेश जो हमसे अलहदा होने के बाद अब माशी तौर पे कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। बांग्लादेश में भी तो अभी नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहां नारे लगे जमहूरियत की बालादस्ती के और कानून की हुक्मरानी के। और ये बात गलत है कि बांग्लादेश में अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान को कबूल नहीं करेगा। क्यों? हमारा रवैया उनके साथ ठीक नहीं था। जब ये आजाद हुआ है तो इसके पीछे ये भी उनके लिए तो इनकलाब था। तो ये तो नहीं था कि कोई मुफ्त में उन्होंने जो है अपना देश बना दिया। हमने खुद ही उनका बरकस निकाला हुआ था। ठीक हो गया। अदलिया का निजाम वसीदा है आपने कहा, क्या होना चाहिए? अदलिया होनी चाहिए जो मेरिट पे हो, एक ऐसी अदलिया जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो, जिसमें ये न हो कि एक शख्स राह चलता जा रहा है उसको पता नहीं अगले दिन वो हाई कोर्ट का जज बना होता है। न कोई ट्रेनिंग है, न कोई क्वालिफिकेशन है, न कोई इम्तिहान है। बस जनाब आप किसी के पसंद नापसंद में आ गए हैं, हमने आपको पसंद कर लिया, आपको हाई कोर्ट का जज बना दिया, फलां को जज बना दिया। अदालत ऐसे लोगों से नहीं चलती है। न्यूट्रल होना चाहिए और बाय मेरिट होना चाहिए। नहीं, बाय मेरिट आपका एक नाम होना चाहिए। आप कोई कंपटीशन के प्रोसेस में हिस्सा लें, दिखाएं, स्किल दिखाएं। बहुत सारे नालायक लोग भी भर्ती होके जनाब माइलॉर्ड बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे, कोई नाम नहीं लेना आज। बहुत सारे हैं, जानता हूँ, लेकिन ये है कि लाइक भी आ जाते हैं। लेकिन इस चीज की रोकथाम कैसी हो कि नालायक या इस मनसब के अहल, सिर्फ ये नहीं है कि आप काबिल हैं, मजबूत आसाब का बंदा आपको होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आप पे अदलिया में हमेशा प्रेशर होगा। मुझे तकलीफ हुई जब ये जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफा दिया। एजाजुल हसन पे कोई प्रेशर ही आया था कि उसने इस्तीफा दिया, और डट जाना है प्रेशर में, यही तो आपके किरदार का इम्तिहान होता है। तो लिहाजा अभी पहली दफा 76 सालों में कौम को अदलिया की जरूरत पड़ी कानून की हुक्मरानी के लिए और उनकी बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जब जरूरत पड़ी तो पता चला कि अदलिया जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। शुरू किया और साथ में फिर जो है मेरे गार्ड्स को मारना शुरू किया, जो मुझसे बर्दाश्त न हुआ। फिर मैंने उनको कहा मारो, और खुद मैंने वो चपेट उसको पीछे लगाई, बल्कि वो शर्ट जो था वो पीछे से मैंने ही पाड़ी थी। और फिर ऐसी दुर्गत बनाई उनकी, उनसे असला छीना, दो बंदूक, एक क्लाशनकोफ और 2 पिस्तौलें छीनी। और जो ही हमारे हाथ में आई फिर तो उनको भागना ही पड़ा।
पीछे से हमने दरवाजा बंद किया, बाद में उन्होंने और पुलिस कॉल की, तो मैंने कहा ये और लोग नहीं आएंगे जो सफेद परचात में, बेशक पुलिस अंदर आए, उनको मैंने असला वापस किया, और इसके बाद तब तक ये जरा मार खाने के बाद वो इंसान के बच्चे बन गए। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर है कि 2-3 घंटे जो है आपको हमने फिराना है और बाकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। मुझे पता था कि ये खुद मातात अफसर हैं और मजबूर हैं, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके साथ लड़ूं, क्योंकि जलसा कैंसिल हो चुका था। अगर जलसा कैंसिल न चुका होता फिर शायद मैं उनको न मिलता। अली अमीन गंडापुर पे इल्जाम है 20 करोड़ का करप्शन का, क्या कहेंगे? इल्जाम ही है, और ये इल्जाम के जवाब में इल्जाम आया है। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पाकिस्तान में इल्जामात जिन पे पहले बनाया गया या इन पे बनाया गया, इनकी कोई अहमियत नहीं होती है, कोई एविडेंस होनी चाहिए, शहादत होनी चाहिए। आपने कहा मरियम नवाज के लिए कि उन्हें पगड़ी पहना दी गई, हमारे यहाँ औरतों को पगड़ी नहीं पहनाई जाती। देखिए, मर्दों का अपना एक तफाखुर के लिए और इज्जत के लिए एक लिबादा होता है, और खवातीन का अपना। अब अगर मैं शुरू हो जाऊं, आपने जो चूड़ियां पहनी है वो मैं पहन के जनाब पुदकता फिरूं, हाँ, या जो है ये जो सैंडल आपने पहने हैं वो मियां साहब भी पहन ले, कोई अच्छा लगेगा? हाँ जी। तो देखिए, पगड़ी मर्दों की शान है और चादर खवातीन की शान है। तो वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। अब ये भी है ना, आज मतलब ये कि कोई पगड़ी पहन रहा है तो कल कला को लोग मर्दों लंग भी पहनते हैं। तो ये तो ना हो ना कि आप मर्दों की ये पग जो है ना, हाँ, ये एक मर्दाना वो है। देखिए, ये नहीं है कि इससे खवातीन को बिलिटल करना है। खवातीन का अपना एक मकाम है मुआशरे में, और एक ताजीम है, तकरीम है। खातून की तकरीम और ताजीम मर्द से कहीं ज्यादा है हमारे मुआशरे में। बेशक। तो पगड़ी पहनने से आप कुछ ज्यादा बाइज्जत नहीं हो सकते हैं, अलबत्ता आप मजाक बना रहे हैं खवातीन का। खवातीन को आप इस पे घुसा रहे हैं कि वो चीजें पहने जो मर्द की शान समझी जाती है। अब अगर कल कला को मर्द साड़ियां पहनने शुरू कर दे कितने बुरे लगेंगे। हाँ, तो ये अच्छा तो नहीं लगेगा ना। बिल्कुल। मर्द की शान नहीं है ना कि वो खवातीन की पैरवी करे। खातून की तकरीम और इज्जत इसी में है कि वो खातून ही रहे, और वो खातून रहते हुए अपने आप को मनवाएं। और मैं आपको बता दूं, हमारे हकूक में, हमारे कवानीन में, हमारे मुआशरे और अक़दार में अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने खातून को मर्द से बदरजा मुअज़्ज़ज़ बनाया है। तो लिहाजा खातून तो और मर्द जो है, हम ये तो हमें कभी माँ की शक्ल में मिलती है। हाँ, तो माँ का दर्जा जो है कितने मर्द पा सकते हैं, और कौन सा मर्द इसकी बराबरी कर सकता है? फिर ये हमें बीवी की शक्ल में मिलती है, शरीके हयात, बच्चों की माँ होती है, और वो आपकी दुनिया बना लेती है। तो कौन सा जो है मर्द ये मकाम पा सकता है? फिर आपकी बेटी होती है, आपके लिए जन्नत का फूल होती है, आपकी दुनिया संवारती है। मतलब हमारी तो दुनिया ही बनी, अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि ये खवातीन से की मौजूदगी से, माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बहन की शक्ल में, इन्होंने हमारी जिंदगी का बाग जो है वो हरियाली रखी हुई है इसमें। तो लिहाजा ऑलरेडी खवातीन हमारे लिए हमारी जन्नत है, हमारी जिंदगी का परतो है, हमारी जिंदगी इन्हीं के दम से है। और मेरा ख्याल है कि मर्द को मर्द और खातून को खातून रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, एक खातून जो है, कैन शी बी अ लीडर? क्यों नहीं? You believe in women empowerment by all means? Definitely, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा जो मुआशरा है, देखो खवातीन के हकूक दीन ने, शरीयत ने, कुरान ने दिए हैं, अमली तौर पर हम कितने दे रहे हैं? हमारे मुआशरे में, पश्तूनों के मुआशरे में मैं देखता हूँ कि शाज़ुल आदरी कोई अपनी बहन, अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा देता है। बिल्कुल। आप यकीन करें, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने अपनी बहन, मेरी बहन यूके में रहती है और उसे कभी मांगा भी नहीं, लेकिन मैंने जायदाद में उसका हिस्सा अलहदा करके उसको पहुंचाया बहुत पहले।
ताकि ये न हो कि हम जिंदा न रहे और हमारे बच्चे जो हैं। और मैंने अपने बच्चे, 2 बच्चे और 1 बेटी है, उनके दरमियान अभी से मैंने, आप यकीन करें कि मैंने अपनी बेटी का हिस्सा दोनों बेटों के बराबर रखा है। That's great. क्योंकि वो सनफ नाजुक है, उसको तकलीफ होंगी, तो लिहाजा जो दोनों बेटों का हिस्सा बनता है उसके बराबर, यानी दोनों का मिला के उतना ही बेटी को दिया है। वैसे आपको पता है मुआशरे की अशद जरूरत है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी वालदा के जो बेहतरीन प्लेजेंट लम्हात क्या हुआ करते थे, सुन के पूरे मुल्क को हैरत होगी। मेरी वालदा साहिबा के बेहतरीन लम्हात तब होते थे जब हफ्ते या 15 दिन में कोई रिश्तेदारों के खवातीन हमारे घर में रात को उनसे मिलने आ जाती थी। ये 15 दिन में एक दफा होता था, और वो रात जो उनकी बैठक होती थी वही उसके बेहतरीन लम्हात हुआ करते थे। न बाजार थे, न रेस्टोरेंट थे, न टूर थे, न ट्रिप थे। इस यानी और आज भी हमारे दई इलाकों में जिंदगी यही है, इसी तरह। बिल्कुल। तो अब दूसरी बात यह है ना कि हमने खवातीन को ये समझा हुआ है कि यार ये तो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है, तो बच्चे पैदा कराओ, ये इनका मसरफ है, जो सरासर गलत है। बिल्कुल। खवातीन जो हैं वो तालीमी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, अकली तौर पे इम्तिहानी हाल में भी और अमलन जिंदगी में मर्दों को पीछे छोड़ रही है। अभी भी जब नताइज आते हैं 99% तक तो इनके मार्क्स आते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कोई खातून किसी दफ्तर में हो गई, इसको इस चीज का मयूब समझा जाना, ये कर्ज है इस मुआशरे के लिए। कोई खातून जो है उसने अपने मर्जी के कपड़े पहने हैं और जा रही है और उस पे चुप्तियां या बातें कसना, ये लईन और लानती लोग हैं। हमने इस मुआशरे में खवातीन को वो आजादी देनी है जो अल्लाह ने दी हुई है। बिल्कुल। अल्लाह ने, देखिए हम यहाँ पे बुरके पहना देते हैं और कहते हैं कि जी ये पर्दा कुरान ने इजाजत दी है, लेकिन पर्दा कितना है? आप जाए ना, हम हज करते हैं, वहां पे किसने बुरका पहना होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा वही पर्दा करो जो अरब करते हैं, जो इस्लाम और सुन्नत में रवा है। लेकिन ये खवातीन का इस्तेसाल जो हो रहा है, इनके हकूक का जाना, उनको एम्पावरमेंट में यानी मुलाजिमतों में और सियासत में और जिंदगी के हर पेशे में, मैं उस पाकिस्तान का ख्वाब देख रहा हूं जहां पे अगर 10 खवातीन रोड पे जा रही हैं तो कोई पाकिस्तानी उनकी तरफ देखे ना। ये खवातीन को चलती हुई घूर घूर को देखना और ये बातें कसना, अभी सोशल मीडिया में जो इस्तेमाल हो रहा है इसमें भी तदरीस की जरूरत है। लोगों को समझना चाहिए कि ये जो बच्चियां हमारी बाहर फिर रही हैं, ये हमारी कौम की इज्जत है, ये हमारा मान है, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्होंने हमारे कौम के बच्चों को जन्म देना है, इन्होंने कौम की तरक्की में हिस्सा लेना है, सियासत में, मईशत में। और आप देखें ना, बेहतरीन जज मैंने देखे हैं खवातीन को, जुडिशरी में मेरे साथ काम किया है, बेहतरीन। आप मर्दों के मुकाबले में खवातीन को देखें, पुलिस में जो खवातीन अलकार होती हैं उनकी शिकायत इतनी नहीं है ना। आप डिसमिसल देख लें, सब मर्द अगर डिसमिस होते हैं, खातून एक भी डिसमिस नहीं होती है, क्योंकि उनका कंडक्ट अप टू द मार्क होता है। सियासत में आप देखिए कितने मर्दों के स्कैंडल आ जाते हैं, कितने खवातीन के स्कैंडल आए हैं। आप फिर सर्विसेज में देख लें, फिर आप इंडस्ट्री में देख लें, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर खवातीन आई हैं, कमाल किया है लोगों ने, डिजाइनिंग में, बुटीक की इसमें, फैशन में, ड्रामा में, यानी ये वो तमाम लोग हैं जिनकी पैरवी करनी चाहिए। मुआशरे में ये दकियानुसियत और रिजत पसंदी के जो अफकार हैं उनको डिफीट करने का वही तरीका ये है कि मर्द और खातून को बराबरी की सतह पे देखें, एक साथ, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोनों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे अपनी जिंदगी, अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने का, और इसी में हमारी मुल्क की कामयाबी पिन्हा और मुज़मिर है। आपकी ये वाली साइड से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। अच्छा, एक सवाल आपसे ऑन अ लाइटर नोट, आपने आज से 3 महीने पहले कहा था मैंने सिगरेट छोड़ दिया है। नहीं, सिगरेट छोड़ने वाला हूँ 15 दिन में, क्या हुआ? वो ब्रांड मैंने छोड़ दिया है। हाँ, वो जो मैंने वादा पूरा कर दिया ना। अब मैंने वो ब्रांड छोड़ के मालब्रो जो है मालब्रो टच शुरू कर दिया है।
ठीक है, अगर फिर वादा करूंगा तो इसके बाद छोड़ दूंगा, फिर सिगार शुरू करूंगा। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने, एक प्रोग्राम में आपने कहा था पुलिस से रिलेटेड, एक लतर मारोगे मैं 10 मारूंगा। ये तो गुस्सा आता कैसे है, और फिर ये बातें करके आपको कोई हाथ क्यों नहीं डाल पाता? ये हाथ नहीं डाल पाता, आपको कोई कुछ कह पाता? क्यों हाथ डाले? मैं ये कानून की किताबें हैं, ये जरा बेटी हैं, मुझे मेरे हकूक का पता है ना, क्यों कोई मुझे हाथ डालेगा? मैं कोई जानवर तो नहीं हूँ कि को बांध के कोंटी से बांध दे। मोहतरमा, मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तानियों के हकूक हैं। वो जो पुलिस वाले उस दिन आए थे, जिनकी वर्दियां फाड़ दी और असलिया छीन लिया, अब आपको पता है उन्होंने क्यों कानूनी एक्शन नहीं लिया? क्योंकि वो उस घर में आ ही नहीं सकते थे, वो लीगली रॉन्ग थे। वो लीगली रॉन्ग थे, और अगर इस हालत में कोई उन पे गोली चलाता तो जायज था, तो जायज था। और कानून मुझे ताजीरात पाकिस्तान दफा 86-88 के तहत मुझे हक देता है कि मेरे प्रॉपर्टी में घुसने वाले को मैं जो है रोकने के लिए उस पर गोली चलाऊं। तो लिहाजा मुझे इल्म है कि कहां पे कानून की जो नाक है वहां खत्म होती है। और जो मैं आपको उसी वो ये कि जब ये लोग वापस आए गए ना और हमने असला दिया इनको, ये परसों की जो बात कर रहा हूं, तो मैं दोबारा वॉशरूम में गया और जब बाहर निकला तो ये इन्होंने फिर धमकियां मेरे स्टाफ को, मेरे गार्ड्स को देनी शुरू की। तो मैं ये समझा कि अब असला इनके हाथ में आ गया तो धमकियां। तो मैंने एक बात उनको कही। वो क्या? मैंने उन्हें कहा कि अगर मेरे बंदों का अभी आपने बाल भी बेका किया, मैं तुम सबकी काल उतार दूंगा। और मैं इस पे मैं जानता हूं कि अगर कोई मेरे साथ ज्यादती करेगा, चाहे वो कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, जिस तरह वो गैर कानूनी तौर पर मुझ पे हाथ उठा लेगा, उसी तरह गैर कानूनी तौर पर मैं उसकी काल भी उतार सकता हूं। खाल उतार दूंगा, लिटर भी फेर दूंगा, कुट भी दूंगा। क्या मतलब? अगर कोई मेरी काल उतारता है, कानून उसको हक देता है? बिल्कुल भी नहीं देता है। जब कोई वो कानून हाथ में ले सकता है, तो फिर उससे बदले लेने में मुझे किसने रोका है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ मेरी तरबियत है। मेरी स्ट्रेंथ वो कल्चर है जिसमें मैं पला बड़ा हूँ। मेरा स्ट्रेंथ मेरा कबीला है। आज भी मेरे कहने पे हजारों लोग जो हैं कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए जान दे सकते हैं। और मेरा स्ट्रेंथ ये है, कोई मेरे साथ जाति करके दिखा दे, चाहे वो पाकिस्तान के किसी इशू में हो, उसका कचूमर निकाल देंगे। तो लिहाजा ये मेरा स्ट्रेंथ है। That's great. आपकी टीम में बड़े मजे के मेंबर्स हैं। मेरी अभी इंटरेक्शन हुई, बड़े स्वीट थे सारे। वो थोड़े टर्की भी है मेरे मेंबर ये दफ्तर के। और वैसे भी अब तो टर्की है, वो उन्होंने अकेली खूबसूरत लड़की देखी होगी तो उन्होंने आगे से तो मैं मदर था उनके टरक का। नहीं, वो टरक मेरे पे तो नहीं था, वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। इसकी फोटो लगा दूंगी मैं। अच्छा अच्छा सर, आप थोड़ा लेट हो गए, हमने बहुत एंजॉय किया। जाते जाते यूथ के लिए कोई पैगाम? यूथ के लिए ये पैगाम है, बहुत आम है, जरूर आपने पहुंचाना है। पाकिस्तानियों, हम अपनी जिंदगी तकरीबन बीत गए, 7-8 साल एवरेज रह गए, और अब वैसे भी हम पाकिस्तान में रहते हुए बोनस में ही 15 साल से फिर रहे हैं। ये मुल्क जो आपके पास हम छोड़ के जाएंगे, इसमें आपको देने के लिए हमारे पास न खजाना है, न कोई तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है। सब कुछ टूट फूट चुका है, और ये हमारी नाअहलियाँ, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियाँ, पाकिस्तान के निज़ाम ने अशराफिया को इनरिच करने के वो टोटके, वो तरीके, इन 76 सालों में हमने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, और दूसरे अल्फाजों में हमने आपके साथ ज्यादती की है। और अब शऊर आ चुका है, इल्म की रोशनी फैल चुकी है। एक वक्त था 30% हमारा लिटरेसी रेशो हुआ करता था, अब बाशऊर हैं, तालीम याफ्ता हैं। खुदारा अपने लिए सोचो, ये निज़ाम जो हम आपको देके जा रहे हैं, जिसमें आप और हम मौजूद हैं, ये तबाही की तरफ ले जा रहा है, और इसने नहीं चलना है। ये आपको बेरोजगारी, बदआमनी, वसाइल से महरूमी और हद तक कि शनाख्त से भी महरूम कर सकता है। तो लिहाजा जाग जाओ अपने हकूक़ के लिए।
आपके हकूक जो आइन देता है, जिसमें किसी थानेदार की बदमाशी ना हो, जिसमें आपका एतकाद हो कि अगर कोई थानेदार मेरे घर में जबरदस्ती घुसता है तो उसको टांग से पकड़ के मैं बाहर फेंक सकता हूँ। ये एतकाद आपका होना चाहिए जो आज मेरा है। आपका ये एतकाद होना चाहिए कि कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा करता है तो निज़ाम आपको इंसाफ अपनी दहलीज पे फराहम करे। आपको ये निज़ाम होना चाहिए कि अदालतें जो हैं वो आज़ाद हो, और आपका ये एतकाद होना चाहिए जहाँ पे कोई किसी का हक ना खा सके, मेरिट की वायलेशन ना हो, और सबसे बाला आप इस मुआशरे में करप्शन का नासूर जो है वो फैलने से रोक दिया जाए। तो बेहतर पाकिस्तान और अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दो। हम आपकी मुस्तकबिल संवारने की जंग लड़ रहे हैं, कोई हमारी ज़ाती जंग नहीं है। ये जो हम पे बीत रही है, अल्लाह हाजिर और नाजिर हैं। ये जंग हम पाकिस्तानियों की लड़ रहे हैं। ये खान जो बैठा हुआ है, कोई उसकी ज़ात की मफादात की जंग होती तो कोई कह देता कि जी इसने कुछ बनाया, अपनी ज़िंदगी अपने जवानी का हर लम्हा इस मुल्क को दे चुका है। तो लिहाजा आओ हमारे इस मिशन में साथ दो, खान को भी रिहा कराएंगे और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी से इस कौम को हम किनार कराएंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। एक मेंबर है दुबई, वो कौन है? दोबारा कहेंगे? दुबई दुबई क्या है? कोई टीम मेंबर है? नहीं, वो दुबई है, दुबई साहब है। वो असल में स्वात से इनका ताल्लुक है, और माशाल्लाह हमारे इलाकाई कल्चर में ऐसी शख्सियत को उसका उर्फ आम पड़ा हुआ है दुबई दराज, तो हम उसको डुब दराज भी कहते हैं। और क्या होता है? ये सब हंस क्यों? हम प्यार से जब किसी को बुलाते हैं तो हम कहते हैं डूबी गुल। तो ये डूबी-गुल? हाँ जी। तो अगर मुझे कोई अच्छा लगे तो मैं उसको कहूँ तो मेरी डूबी गुल लो? जी हाँ। No, seriously. जी हाँ, जी हाँ। डूबी गुल? डूबी गुल। Okay. Thank you. Thank you. Was Sher Afzal Khan Marwat. Don't forget to comment, like and subscribe. See you again at Coffee with Fariha. Khuda Hafiz.